أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورۃ البقرہ ترجمہ 10واں رکوع. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اناتھوں اور مسکینوں دردروں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے ہو. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک سموہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو ان پر مدد دیتے ہو ان کے خلاف یا دشمن کو گناہ اور زیادتی میں اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے. تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ذلیل ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے. تفسیر سورہ بقرہ 10واں رکوع. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا آدیش دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے اور اپنے شریر اور مال سے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے. جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے. اگر ماں باپ اپنی خدمت کے لیے نفل اترکت عبادت چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دیں. ان کی خدمت نفل سے بڑھ کر ہے.
जो काम वाजिब अनिवार्य है वो माँ बाप के हुक्म से छोड़े नहीं जा सकते। माँ बाप के साथ एहसान के तरीके जो हदीसों से साबित हैं, ये हैं कि दिल की गहराइयों से उनसे मोहब्बत रखे, बोल चाल उठने बैठने में अदब का ख्याल रखे, उनकी शान में आदर के शब्द कहे, उनको राजी करने की कोशिश करता रहे, अपने अच्छे माल को उनसे न बचाए, उनके मरने के बाद उनकी वसीयतों को पूरा करे, उनकी आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करे, कुरान का पाठ करे, अल्लाह ताला से उनके गुनाहों की माफी चाहे, हफ्ते में कम से कम एक दिन उनकी कब्र पर जाए। फतहुल अजीज। माँ बाप के साथ भलाई करने में यह भी दाखिल है कि अगर वो गुनाहों के आदी हो या किसी बदमजबी में गिरफ्तार हो तो उनको नरमी के साथ अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहे। खाजिन। अच्छी बात से मुराद नेकियों की रुचि दिलाना और बुराइयों से रोकना है। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मानी ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सच बात कहो। अगर कोई पूछे तो हुजूर के कमालात और विशेषताएं सच्चाई के साथ बयान कर दो और आपके गुण मत छुपाओ। एहद के बाद जो ईमान ले आए हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथियों की तरह, तो उन्होंने एहद पूरा किया। और तुम्हारी कौम की आदत ही विरोध करना और एहद से फिर जाना है। तौरात में बनी इस्राइल से एहद लिया गया था कि वो आपस में एक दूसरे को कत्ल न करें, वतन से न निकालें, और जो बनी इस्राइल किसी की कैद में हो उसको माल देकर छुड़ा लें। इस पर उन्होंने इकरार भी किया, अपने नफ्स पर गवाह भी हुए, लेकिन कायम न रहे और इससे फिर गए। मदीने के आसपास यहूदियों के दो समुदाय बनी कुरैजा और बनी नुज़ैर रहा करते थे। मदीने के अंदर दो समुदाय औस और खजरज रहते थे। बनी कुरैजा औस के साथी थे और बनी नुज़ैर खजरज के, यानी हर एक कबीले ने अपने सहयोगी के साथ कसमा कसमी की थी कि अगर हम में से किसी पर कोई हमला करे तो दूसरा उसकी मदद करेगा। औस और खजरज आपस में लड़ते थे। बनी कुरैजा औस की और बनी नुज़ैर खजरज की मदद के लिए आते थे और सहयोगी के साथ होकर आपस में एक दूसरे पर तलवार चलाते थे। बनी कुरैजा बनी नुज़ैर को और वो बनी कुरैजा को कत्ल करते थे और उनके घर वीरान कर देते थे, उन्हें उनके रहने की जगहों से निकाल देते थे। लेकिन जब उनकी कौम के लोगों को उनके सहयोगी कैद करते थे तो वो उनको माल देकर छुड़ा लेते थे। जैसे अगर बनी नुज़ैर का कोई व्यक्ति औस के हाथों में गिरफ्तार होता तो बनी कुरैजा औस को माल देकर उसको छुड़ा लेते, जबकि अगर वही व्यक्ति लड़ाई के वक्त उनके निशाने पर आ जाता तो उसके मारने में हरगिज नहीं झिझकते। इस बात पर मलामत की जाती है कि जब तुमने अपनों का खून न बहाने और उनको बस्तियों से न निकालने और उनके कैदियों को छुड़ाने का एहद किया था, तो इसके क्या मानी कि कत्ल और खदेड़ने में तो झिझको नहीं और गिरफ्तार हो जाएं तो छुड़ाते फिरो। एहद में कुछ मानना और कुछ न मानना क्या मानी रखता है? जब तुम कत्ल और अत्याचार से न रोक सके तो तुमने एहद तोड़ दिया और हराम किया और उसको हलाल जानकर काफिर हो गए। इस आयत से मालूम हुआ कि जुल्म और हराम पर मदद करना भी हराम है। यह भी मालूम हुआ कि यकीनी हराम को हलाल जानना कुफ्र है। यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब के एक हुक्म का न मानना भी सारी किताब का इनकार और कुफ्र है। इसमें यह चेतावनी है कि जब अल्लाह के निर्देशों में से कुछ का मानना कुछ का न मानना कुफ्र हुआ तो यहूदियों को हजरत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने के साथ हजरत मूसा की नबुव्वत को मानना कुफ्र से नहीं बचा सकता। दुनिया में तो यह रुसवाई हुई कि बनी कुरैजा सन 3 हिजरी में मारे गए। एक दिन में उनके 700 आदमी कत्ल किए गए थे और बनी नुज़ैर इससे पहले ही वतन से निकाल दिए गए थे। सहयोगियों की खातिर अल्लाह के एहद के विरोध का यह वबाल था। इससे मालूम हुआ कि किसी की तरफदारी में दीन का विरोध करना आखिरत के अजाब के अलावा दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का कारण होता है। इसमें जैसे नाफरमानों के लिए सख्त फटकार है कि अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है, तुम्हारी नाफरमानियों पर भारी अजाब फरमाएगा। ऐसे ही ईमान वालों और नेक लोगों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें अच्छे कामों का बेहतरीन इनाम मिलेगा। तफसीर कबीर, तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।